My name is Tarun Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today I am delivering a lecture on second lecture on theory of computation on behalf of GuruKPO.com. Today we will discuss about the NDFA and DFA concept and difference. What is NDFA and DFA? First of all, we will discuss about the machine nature. Basically, machine have two types of nature. First is deterministic and second is non-deterministic. कहने का मतलब कि मशीन के टू टाइप्स के नेचर है आपके. फर्स्ट है आपका डिटर्मिनिस्टिक नेचर और सेकंड है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर. बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन का जो कंपलसरी नेचर होता है, जो मशीन वर्क करती है वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर पे काम करती है. ठीक है, तो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट टेक्निक है आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए टेक्निक्स विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आवर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. अब फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली हैव टू टाइप्स, two category machine. We know about the machine have two category, deterministic and non-deterministic. The techniques further divided in two categories. First is deterministic finite automata and second is non-deterministic finite automata. By default जो आपकी टेक्निक होगी फाइनाइट ऑटोमेटा में वो होगी आपकी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और इसमें अपन जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो करेंगे अपन रेगुलर लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे हम फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर? रेगुलर लैंग्वेज. तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए टेक्निक्स एंड इट्स फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी. फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सेकंड इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और बाय डिफॉल्ट जो टेक्निक होगी वो आपकी होगी डीएफए. टू रिप्रेजेंट अवर ऑटोमेटा टेक्निक्स वी यूज टू नोटेशंस. फर्स्ट इज ट्रांजिशन टेबल एंड सेकंड इज ट्रांजिशन डायग्राम. First is transition table and second is transition diagram. Automata, you know about the automata. We will previous discuss about our first lecture. Automata means language plus machine. Language plus machine is automata. और technique अपन जो use कर रहे हैं वो finite automata. Now what is the basic difference between deterministic finite automata and non-deterministic finite automata? So now the deterministic finite automata means we have all five tuples. It consists of 5 tuples. First is transition summation means input symbol. Second is transition diagram, transition function. Third, initial state, final state, or Q is total number of state. Input symbol Q, final set of state, Q0 initial state, QF final state. Now what is the difference between transition function in deterministic and non-deterministic? In deterministic finite automata, transition functions means if you are in present state and if you apply a input, then you can go only one state only. You can move only one present state. You have only one present state. But in non-deterministic finite automata, you can move. If you are in present state, if you are apply a input, then you can go 0 or more or 2 or more state you can move. That means you can move maximum 2 की power q states. You have possibility of 2 की power q state from present state to next state. This is the basic difference between deterministic and non-deterministic. But deterministic and non-deterministic का मतलब है कि आप लोग कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने कोई मशीन बनाई, कोई आप ऑटोमेटा बना रहे हो, तो डिटर्मिनिस्टिक बनाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपके पास एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट से आप कोई मूव कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. आपके पास बहुत सारी फाइनल स्टेट हो सकती हैं, बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट हो सकती हैं. तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो होता है आपको उसको आप इजी तरीके से बना सकते हो. देन यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनडीएफए टू डीएफए. नाउ हाउ टू यूज टू नोटेशंस. फर्स्ट ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन टेबल. हाउ टू कन्वर्ट ट्रांजिशन डायग्राम टू ट्रांजिशन टेबल और वाइस वर्सा. तो नाउ डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम. ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन डायग्राम मीन्स डीएफए एंड एनडीएफए. डीएफए का जो आपको पता ही है कि इनपुट जो डीएफए में जो होगा, आपने कोई भी स्टेट है वो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटीज है, एक ही नेक्स्ट स्टेट पे आप मूव कर सकते हो. एनडीएफए में आप जो है एक स्टेट आपके पास प्रेजेंट स्टेट के ऊपर हो और आपने कोई भी इनपुट अप्लाई किया तो यू कैन मूव 0 और मोर और 2 की पावर q मैक्सिमम आप मूव कर सकते हो. तो अपने डायग्राम के थ्रू अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट डीएफए दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम, दिस इज द इनिशियल स्टेट, this is final state and this is the intermediate state. So this is the transition diagram of DFA, this is the transition diagram of NDFA. We have 3 state Q0, Q1 and QF. Q0 is initial state,
QF is the final state. Now we will convert this diagram to table, this transition diagram to transition table. So how to convert? We have 3 columns, we have 2 columns. First is present state, second is next state, which consists of inputs. Inputs is A and B, which consists of inputs is A and B. Now the present state is, we have write the present state. We have 3 states in DFA, Q0, Q1, QF. Q0 is initial state, denoted as like that. QF is final state, denoted as the circle. Now how to create transition diagram to transition table? First we have checked the initial state. We will start from initial state Q0. Input is A. If you are apply the input A, which state we can move? We will move only Q0 to Q1. We have write this Q1. Now we have checked for the B input, we can move its on. This is called self loop. If the state is on, that means we call self loop. तो आपने Q0 अप्लाई किया, B इनपुट पे आप गए तो आप Q0 पे आ सकते हो, क्योंकि दिस इज द डायग्राम जो आपको शो कर रहा है. फिर आप नेक्स्ट स्टेट Q1 में अगर आप A इनपुट अप्लाई कर दो तो यू नो वी कैन मूव Q1 टू QF आपने लिख दिया. अगर आप B इनपुट देते हो Q1 में तो उसमें कोई भी आपका इनपुट नहीं है, दैट मीन्स नल. 5 इज डिनोटेड एज नल. तो आपके पास कोई भी अगर नेक्स्ट स्टेट पॉसिबल नहीं तो वहाँ पे उस जगह आप नल लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद QF में अगर आपने A इनपुट दिया, दैट मीन्स यू कैन, दिस इज द अगेन सेल्फ लूप. QF पे आप पहुँच पाओगे. नेक्स्ट स्टेट जो आपकी QF ही है. अगर आपने B इनपुट दिया, दैट मीन्स नल. तो दिस इज द फाइनल ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस ट्रांजिशन डायग्राम. तो इस ट्रांजिशन टेबल को देख के आप ये बता सकते हो कि ये DFA है NDFA. आप लोग देख सकते हो इसमें, हम देख सकते हैं कि आपके जो स्टेट है वो सारी सिंगल स्टेट है, कोई भी 2 स्टेट नहीं आ रही है, या तो 0 है या फिर 1 स्टेट है. 0 अगर 1 स्टेट है दैट मीन्स वो DFA है. उसके अलावा अगर आपकी एक से ज़्यादा स्टेट अगर टेबल के अंदर दिख रही है ट्रांजिशन में, दैट इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक. दूसरे डायग्राम में NDFA में यही शो कर रहा है आपका. आपने 3 स्टेट वही सेम Q0, Q1, QF. आपने A इनपुट के लिए चेक किया, यू कैन मूव फ्रॉम, इफ यू आर गिविंग A इनपुट फ्रॉम Q0, देन यू कैन मूव Q0 to Q1 and Q0 to its own self loop Q0. That means Q0 and Q1 is the next state for the input A. If you are apply B input, then you can move again self loop Q0. Q1 में अगर आपने A इनपुट दिया, A इनपुट दिया, दैट मीन्स 5 नल, कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. अगर आपने A इनपुट दिया है तो, B इनपुट दिया है तो आप क्लियरली आप देख सकते हो QF में आप पहुंच रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट QF में A और B आपके सेल्फ हैं तो QF. तो आप इस टेबल, दोनों टेबल में आप कंपैरिजन देख सकते हो कि इस Q0 वाले पार्ट में 2 ट्रांजिशन नेक्स्ट स्टेट पॉसिबल है, एक इनपुट में 2 स्टेट पॉसिबल है. दिस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक. इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक ही स्टेट पॉसिबल है, सिंगल सब में या तो है ही नहीं, नल है, या फिर आपकी एक है. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक. हम जानते हैं कि NDFA जो है बनाना बहुत ईजी है. NDFA आराम से बना सकते हो क्योंकि इसमें आप कोई भी प्रेजेंट स्टेट पर हैं तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप आराम से ईजी टू कंस्ट्रक्ट है. लेकिन मशीन जो है वो तो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. तो आपने NDFA बना लिया, ठीक है. अब आपको NDFA से DFA में कन्वर्सन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मशीन तो डिटर्मिनिस्टिक है, सिस्टम तो आपका डिटर्मिनिस्टिक है, एक ही आउटपुट पे जाएगा, एक ही नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा. तो अपने को नीड पड़ेगी हाउ टू कन्वर्ट NDFA टू DFA. कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक आपने जो ऑटोमेटा बनाया है उसको आप DFA में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाओगे. कि आपकी टेक्निक जो फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उसको जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपने बनाया उसको डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाओगे. तो इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम NDFA टू DFA. ओके. तो NDFA से DFA कन्वर्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल कि हाउ टू कन्वर्ट NDFA टू DFA. ये आपका NDFA. अगर आपके पास ट्रांजिशन, 2 नोटेशन होते हैं आपके, ट्रांजिशन टेबल और एक ट्रांजिशन डायग्राम. अगर आपका डायग्राम दे रखा है तो आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें. ट्रांजिशन डायग्राम, इफ द एग्जामिनर मेंशन ट्रांजिशन डायग्राम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट फ्रॉम दिस डायग्राम टू टेबल. ओके. ये टेबल आपको कन्वर्ट करना मैंने बता दिया है कि टेबल क्या है. टेबल आपने कन्वर्ट की, आपको पता चल गया ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. ये क्या है आपका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है आपका. उसके बाद जो इनिशियल स्टेट इसके अंदर है वही इनिशियल स्टेट आपके नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर होगी. जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको आप डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर रहे हो. तो आपका कन्वर्ट किया आपने. सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेट से आपको स्टार्ट करना है. इनपुट आपके कितने, इनपुट सिंबल आपके पास 2 हैं, A एंड B, जो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा. उसके बाद हम ट्रांजिशन फंक्शन हमेशा यूज करेंगे. ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं
कि आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन कौन सी स्टेज पर है। इनिशियल आपने स्टार्ट किया Q0, इनपुट दिया आपने A, कौन सी स्टेज पे आप पहुंच गए Q0 एंड Q1, यहां पे लिखना है आपको। उसके बाद Q0 B इनपुट आपने दिया Q0, तो Q0 नई स्टेट कौन कौन सी आई है आपके पास, नई स्टेट आपको इन दोनों को मिला दें, Q0 Q1 एक नई स्टेट आई है, और Q0 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम नहीं लेंगे। नई स्टेट आपकी जो आई है वो Q0 एंड Q1 आपकी नई स्टेट आई है। तो आपको पहले टेबल बनाते हुए चलना है। टेबल बनाई Q0 Q1 एंड Q0 आपकी एक टेबल बनी है। उसके बाद नई स्टेट कौन सी आई है Q0 एंड Q1, Q0 Q1 इज द न्यू स्टेट। फिर न्यू स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, जब तक आप करते रहोगे जब तक आपकी नई स्टेट आती रहेंगी। जैसे ही नई स्टेट आना बंद हो जाए लास्ट में आप बंद कर दोगे और टेबल बना दोगे, ठीक है। तो आप Q0 Q1 इज द न्यू स्टेट, आपने Q0 Q1 में आपने ए इनपुट अप्लाई किया। अब दो हैं तो इसको यूनियन ऑपरेशन से आप इसको डिनोट करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखें। डेल Q0 A यूनियन डेल Q1 A, Q0 A पे आपको टेबल से देखना है, उसी टेबल से देखना है आपको जो आपने स्टार्टिंग में बनाई थी। Q0 Q1 यूनियन Q0 में अगर आपने इनपुट दिया तो 5 मतलब नल, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो Q0 Q1, ये कोई नई स्टेट नहीं है क्योंकि पहले हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद Q0 Q1 B के लिए आप इनपुट के लिए करोगे Q0 B यूनियन Q ट्रांजिशन फंक्शन Q1 B। उनकी तरफ क्यों देख रहे हो यार, आप यहाँ ही देखो ना। Q0 Q1 में आपने B इनपुट अप्लाई किया, Q0 B यूनियन Q1 B। अब देखना है Q0 B पे अगर आपने दिया तो कौन से स्टेट पे पहुंच रहे हो आप, Q0 यूनियन QF, दोनों को मिलाओगे तो Q0 QF विच इज न्यू स्टेट, जो कि आपकी नई स्टेट है। ऐसी प्रोसेस वापस से फिर अगेन रिपीट करना आपको। Q0 QF के लिए A इनपुट दिया तो Q0 A यूनियन QF B, Q0 Q1 5, Q0 Q1 ऑलरेडी आपकी क्या है, ये न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट नहीं है, सॉरी न्यू स्टेट नहीं है आपकी, कैंसिल, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपके पहले ले चुके इसको। फिर Q0 QF B के लिए लोगे, यही प्रोसेस सेम करना है आपको। Q0 B यूनियन डेल्टा QF B, Q0 यूनियन 5 Q0, ये ऑलरेडी आप इनिशियल स्टेट में ले चुके हो, दैट मीन्स यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर आप टेबल क्रिएट करोगे कि आपने कौन कौन सी नई स्टेट आई और क्या क्या इनपुट हुए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस बी क्रिएट ट्रांजिशन टेबल। जब आपकी नई स्टेट आना बंद हो जाए, नई स्टेट आती जा रही तो आप इनपुट अप्लाई करते हैं A और B, जैसा आप लोगों ने प्रोसेस किया। आपने Q0 Q1 पे किया, Q0 QF पे किया, जहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे ये नई स्टेट नहीं थी, ये नहीं। उसके बाद आप टेबल बनाए, टेबल बनाई मैंने, नई स्टेट कौन कौन सी थी, Q0 इनिशियल स्टेट NDFA में और DFA में एक ही रहेगी Q0। उसके बाद नई स्टेट आई Q0 Q1, कंबाइन किया स्टेट को, और एक थी आपकी Q0 QF, उसमें आपने इनपुट दिए A और B, नेक्स्ट स्टेट, NS मीन्स नेक्स्ट स्टेट। तो Q0 Q1 आपने किया, Q0 Q1 के बाद आपने A इनपुट दिया तो Q0 Q1 आ रहा था, नई स्टेट आई थी Q0। फिर Q0 Q1 में Q0 Q1 आया, Q0 QF आप लोग देख सकते हो, आपने जो आपने कैलकुलेशन की थी Q0 QF में आपका Q0 Q1 और Q0 यहीं पे स्टॉप। ये टेबल आपकी बन जाएगी। दिस टेबल इज कॉल्ड DFA टेबल, DFA ट्रांजिशन टेबल। इस DFA ट्रांजिशन टेबल से आप डायग्राम बनाओगे, सिंपल वही, कितनी स्टेट है, 3, Q0 Q1 Q0 QF। और आप इस इनपुट के जैसे मैंने आपको नोटेशंस में बता रखा है हाउ टू कन्वर्ट ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन डायग्राम और वाइस वर्सा। तो आप देख लें, A इनपुट में अगर आपने दिया तो Q0, B इनपुट दिया तो B Q0, और अगर आपने Q0 Q1 से A इनपुट दिया तो सेल्फ लूप है आपका, Q0 Q1 पे आप जाओगे। उसके बाद अगर आप B इनपुट देते हो तो Q0 QF पे आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद Q0 F पे पहुंचने के बाद आपके पास A इनपुट दिया तो वापस से अगेन आपका इधर Q0 Q1, उसके बाद B इनपुट दिया तो Q0 पे आप पहुंचे। दिस इज द DFA, कि आपके पास एक ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, एक स्टेट से आप कोई भी इनपुट दोगे तो आप एक ही स्टेट पे पहुंच जाओगे। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक कन्वर्जन फ्रॉम NDFA to DFA। Thank you to watching my video. If you like this video, please like, comment and share this video as well as subscribe our YouTube channel. Thank you so much.